Hello students, today we are going to learn history chapter number 4, the Mughal Empire. In this particular chapter we are going to learn about how Delhi Sultan's demise and how Mughals entered and established their rule and kingdom. Now, the Mughals were the descendants of the two great rulers of Central Asia. Descendants means what? Descendants means जो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, राइट? तो मुगल्स किससे बिलोंग करते थे? तो वो सेंट्रल एशिया के जो थे डिसेंडेंट्स, उनसे वो बिलोंग करते थे. हियर फ्रॉम देयर मदर साइड, मतलब कि उनके मदर साइड से वो किसके डिसेंडेंट्स थे? दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान who ruled over Mongol tribes and China and some parts of Central Asia. And from their father's side, they were the successors of Timur. Successor of Timur means what? तिमूर को हरा के उनके जो फादर साइड थी वो उन्होंने तिमूर को हरा के अपना रोल किया था. The Mughal Empire was founded in India, very much important, by Zahiruddin Muhammad Babur in 1526 AD by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. This particular thing we learn in our earlier chapter. What we learn in that particular कि इब्राहिम लोदी कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के किंग थे, राइट? लोदी डायनेस्टी के रूलर थे वो. और वो जब रूल कर रहे थे तो उनके जो डेप्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया था? बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी के साथ फाइट करने के लिए, बैटल करने के लिए. सो Babur defeated Ibrahim Lodi and started Mughal Empire, establishing the Mughal Empire through the first battle of Panipat. Now we are going to learn about Babur. His duration is 1526 to 1530 AD. Babur, the first Mughal emperor who ascended the throne of Fargana, a small Central Asian kingdom, in 1494 AD, merely at the age of 12. What is written down over here, student? In this Central Asia, a small area is there, and that small area's name is Fargana, and Babur is the थ्रोन हैंडलर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. और कौन सी एज में उन्होंने थ्रोन हैंडल करना स्टार्ट कर दिया था? कौन सी एज से उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट किया था? एट द वेरी एज ऑफ 12. He captured Kabul, then he invaded India and defeated the Lodi Sultan, Ibrahim Lodi, at Panipat in 1526 AD. After that, he is ruling on Fargana, a small Central Asian part. Afterward, he controlled the Kabul, and what he did Panipat battle with Ibrahim Lodi and defeated him. The entire area up to Delhi and Agra was brought under Babur's control. Babur also defeated the heroic Rajput ruler Rana Sanga in the Battle of Khanwa, a place about 40 kilometers away from Agra. When he defeated Ibrahim Lodi, afterward what he did, he captured so many areas by what? By doing battles with that particular area's rulers. And first battle he did in Khanwa, that is the Battle of Khanwa, with whom? Heroic means what, students? Very brave. ब्रेव जो रूलर थे, राणा सांगा राजपूत रूलर, उनके साथ उन्होंने बैटल किया था. एंड द खानवा प्लेस इज what? 40 kilometers away from the Agra. And second battle, the Battle of Khanwa, made Babur's position stronger in the Delhi-Agra region. He defeated the Rajputs at Chanderi. This is the second battle. किसको डिफीट किया था? राजपूत को. कहाँ पे? चंदेरी में, in 1528 AD. Babur also tried to crush the Afghan chief of Bengal and Bihar region, but he died in 1530 AD before he could strengthen his hold over the conquer region. मतलब कि जिनके साथ उनकी बैटल चल रही थी
उनके साथ बैटल करके वो अपना पोजीशन और स्ट्रॉन्ग बना सके, उससे पहले ही इन 1530 AD ही died. Babur advent in India introduced a new mode of warfare in India. Warfare means what? तो वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? द वर्ड वॉर इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट. सो व्हाट इज दैट कि वॉर के लिए उन्होंने नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे. तो फ्रॉम द बाबर्स रूल्स न्यू पॉलिसीज ऑफ वॉर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. He showed how victory can be achieved by a skilled combination of artillery and cavalry. Artillery means what? Weapons. And cavalry means what? Soldiers. मतलब बाबर थे जिन्होंने बताया था कि विक्ट्री कैसे पाई जा सकती है. तो अगर आपके पास स्किलफुल सोल्जर्स होंगे, और वो स्किलफुल सोल्जर्स कैसे होंगे? जिनको वेपन्स यूज करना आता होगा, तो वी कैन गेट द विक्ट्री. His victories made gunpowder and artillery very popular in India. जो विक्ट्री बार बार उनकी हो रही थी सब बैटल्स में, तो वो विक्ट्री की रीजन भी तो होंगे कि नहीं होंगे? तो द रीजंस आर व्हाट? द स्किल्ड सोल्जर्स, स्किल्ड आर्टिलरी मीन्स उनके पास जो वेपन्स थे वो उनकी विक्ट्री के पीछे के रीजंस थे. सोल्जर्स थे जो वो वेपन्स को बहुत अच्छे से यूज करते थे बैटल में, एंड प्लस गन पाउडर. तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे उनके ड्यूरेशन में. Babur was a scholar of Persian. Scholar means what? Knowledgeable person who has written down the books, right? So they were known as scholars. तो बाबर बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी थे. टर्किश एंड अरेबिक. एंड वो कौन सी लैंग्वेज में बुक्स लिखते थे? इन टर्किश एंड अरेबिक. His famous मेमोयर मीन्स रिटन अकाउंट्स. मतलब कि जितने भी बुक्स उन्होंने लिखे उसमें से फेमस कौन सा बुक है? दैट इज तुजुक बाबुरी, और यू कैन से दैट बुक नेम इज बाबरनामा. Is regarded as a great literary work in which, literary means written work, in which he describes about the physical features and natural beauty of India. Now we are going to learn about Humayun. After Babur's death, who controlled the Mughal ruler's throne? That is Humayun. Duration is 1530 to 1540 AD, and again 1 year, that is the 1555 to 56 AD. The gap is between there, and we are going to learn about that gap reason also in particular chapter. In 1530 AD, Babur's son Nasiruddin Muhammad Humayun, Humayun's full name is Nasiruddin Muhammad Humayun, inherited Babur's throne. But of course, बाबर की डेथ के बाद उनके सन ने, मतलब कि हुमायूं ने उनका थ्रोन हैंडल किया. However, हुमायूं lost his kingdom to शेर शाह, और हुमायूं ने कितने years तक रूल किया था? अराउंड वी कैन से 10 years, राइट? 30 to 40. बट उसी ड्यूरेशन में वो किससे डिफीट हो गए थे? शेर शाह से वो डिफीट हो गए थे. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ शेर शाह ओवर हियर, जिनके साथ उनका बैटल हुआ था. और वो बैटल में वी कैन लर्न ओवर हियर कि बैटल में क्या हुआ. तो शेर शाह से वो डिफीट हो गए. तो मुगल रूल किसके हैंडल में चला गया था? शेर शाह के. शेर शाह कौन थे? तो एन अफगान चीफ ऑफ बिहार who defeated Humayun at the Battle of Chausa, that is in 1539 AD. Kannauj 1540 AD. So you can say that 1540 AD में तक में शेर शाह ने डिफीट कर दिया था हुमायूं को, and that is why this gap is happened. But in 1555 AD, after शेर शाह's death, मतलब शेर शाह की जब डेथ हो गई उसके बाद, हुमायूं managed to recapture Delhi and Agra and re-establish Mughal rule in India. He managed somehow and again recapture the area. But he did not live long to enjoy the fruits of his victory. He died from a fall while coming downstairs from the first floor of the library. What happened? 55 में उन्होंने वापस अपना रूल कैप्चर कर दिया, but he is not able to enjoy that victory because he died in 1 year only. And how he died? He fall from the
डाउनस्टेयर्स जब वो अपने लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो वो डाउनस्टेयर्स से जब नीचे आ रहे थे तो वहां से वो गिर गए थे. In his fort at Delhi in 1556 AD. Now, Humayun's wife built a magnificent mausoleum for him. Mausoleum means for students to a building or housing tomb. You can see the picture over here. टॉम्ब नॉर्मली कैसे होते हैं, तो वो स्मॉल होते हैं, बट मॉसेलियम किसे बोला जाता है, तो ऐसे टॉम्ब बिल्ड किए जाते हैं जो पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है. यू कैन से the best example of mausoleum is Agra, Taj Mahal, right? Its remarkable feature is the magnificent dome of white marble. You can see the white marble dome over here. So this is the most remarkable feature of that particular building. Now we are going to learn about Sher Shah. 1540 to 1545 AD. You can see the gap over here. 1540 जब शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था, एंड आफ्टरवर्ड 55 में उसने वापस रिकैप्चर कर दिया. तो हियर द गैप इज 45. तो ये जो गैप था बीच में, वहां पे उस ड्यूरेशन में किसने रूल किया था? शेर शाह ने. शेर शाह बर्थ नेम वॉज फारिद खान. He killed a fully grown tiger with his bare hands. Bare hands means what? Without any weapons. उन्होंने fully grown tiger जो था, मतलब कि हट्टा कट्टा जो टाइगर था फॉरेस्ट में, उसको किल किया था, जिससे उनकी ब्रेवरी पता चलती थी कि वो कितने ब्रेव थे. In the jungle of Bihar, so he was called Sher Shah, the Lion King, and that is why only he is known as Sher Shah. He was the founder of Sur dynasty. Very much important. शेर शाह ने कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे? सूर डायनेस्टी. शेर शाह ruled over a huge empire extending from Bengal to the Indus. Sher Shah was a brilliant administrator. He re-established law and order and paid great attention to the development of trade and commerce and the improvement of communication in his kingdom. What he did during his ruling duration, तो उन्होंने क्या क्या किया था? तो वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे. कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे? तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे. प्लस अपने किंगडम के डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, जैसे कि ट्रेडिंग पर्पस उन्होंने बहुत अच्छा सा एस्टेब्लिश किया था. Sher Shah built, it is very much important, Sher Shah built many roads. He also set up 1700 seras or inns. Seras means what? Seras means roads and inns means vehicles. मतलब कि उन्होंने 1700 roads बनवाए थे और vehicles भी बनवाए थे जिनसे उन पे ट्रांसपोर्ट हो सके, ताकि ट्रेडिंग और कॉमर्स अच्छे से हो पाए. नाउ, to provide safe stay for travelers, the roads and seras built by Sher Shah were called the arteries of his empire. Arteries means what? Most important routes, most important construction of particular empire. तो we can say कि उन्होंने बहुत सारे नए नए रोड्स बनवाए थे, प्लस बहुत सारे उन्होंने सेरास मीन्स ऑल्सो रोड्स, बहुत सारे रोड्स कम्युनिकेशन के लिए बनवाए थे, ताकि पीपल अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं. प्लस ट्रैवलर्स के स्टे के लिए भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट किए थे. दे हेल्प्ड इन क्विकनिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स इन हिज एम्पायर. To promote and trade and commerce, he standardized coins and weights and measures. Trading purpose के लिए उन्होंने coins भी बनवाए थे, जो कैसे थे? तो standardized. You can say that Sher Shah made fine coins of gold, silver and copper of uniform standard. He fixed standard weight and measures and introduced all over the empire. Sher Shah was very strict about maintaining law and ऑर्डर. वो बहुत ही स्ट्रिक्टली सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाते थे. अकॉर्डिंग टू अब्बास सरवामी, अ हिस्टोरियन ऑफ दैट पीरियड. हिस्टोरियंस मतलब कि जो किंग के रूलिंग ड्यूरेशन के बारे में अपनी बुक में लिखते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस बोला जाता है. जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो जो फेमस हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री स्टडी की थी शेर शाह की, दैट इज द अब्बास सरवानी. उन्होंने क्या बोला है? An old woman might place a basket full of gold ornaments on the head and go on a journey, and in the way no thief or robber would come near her,
for fear of the punishment which Shersha inflicted. उन्होंने क्या बोला है कि एक अगर ओल्ड वुमन है वो विदाउट एनी फियर एक बास्केट भर के पूरा गोल्ड ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकती है और वो जर्नी करेगी जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो नो रॉबर्स नो डेकॉइट्स कोई भी आएगा नहीं. किस दर से कोई भी थीफ नहीं करेगा, किस दर से, तो पनिशमेंट्स जो शेरशाह देते हैं उनके दर से रॉबर्स भी क्या करते थे तो डरते थे कि वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से. शेरशाह ऑल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द लैंड सिस्टम, army and justice. Shersha was very concerned about the welfare of the cultivators और because of that only he is very concerned about that. उन्होंने farmers के लिए भी बहुत अच्छे rules बनाए थे. Every farmers in Shersha's empire was given a document called patta which already mentioned the area shown. Area shown means what कि कौन सा एरिया किस फार्मर को प्रोवाइड किया गया है. पत्ता क्या है तो पत्ता इज अ वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें मेंशन किया जाता था कि कौन से फार्मर को कौन सा एरिया प्रोवाइड किया है, वो कौन से टाइप का क्रॉप वहां पे ग्रो करेंगे एंड अमाउंट ईच पीजन हैड टू पे टू द स्टेट एज लैंड रेवेन्यू और उनको कितना लैंड रेवेन्यू पे करना है. ये सारी चीज जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती थी उन्हें वो क्या बोलते थे, पत्ता. A document like this tried to ensure that the cultivators are not cheated by the revenue collectors. Thus, Shersha introduced many improvements in his brief reign of 5 years. मतलब कि जो 5 years उन्होंने रूल किया था उन्होंने बहुत सारे improvements किए थे. Inside, Shersha built very much important inside. Shersha built the Grand Trunk Road from the Peshawar, now in Pakistan, in the west to Sonargaon, Bengal, in the east. He built seras at a distance of about 8 kilometers on roads for the convenience of the traders and travelers. Shersha died in 1545 AD. His successors ruled until Humayun restored मुगल रूल इन 1555 AD. 45 में उनकी डेथ हो गई थी. आफ्टरवर्ड जो गैप है 10 ईयर का, उस 10 ईयर के रूलिंग ड्यूरेशन में शेरशाह के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने रूल किया था, बट आफ्टरवर्ड हुमायूं ने वापस उसे रिकैप्चर कर दिया था. नाउ अकबर 1556 to 1605 AD. Humayun was succeeded by his son Akbar in 1556 AD, where he was only 14 years old. Akbar became the emperor under the guardianship of Bairam Khan. Guardianship means what? तो किसी के अंडर उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट किया था, जिनके वो क्या करते थे तो उनके इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करते थे, उनके साथ डिस्कशन करके कोई भी डिसीजंस वो लेते हैं. तो लाइक दैट कि हुमायूं के सक्सेडर कौन थे, हिज सन अकबर, जो कितने इयर्स के थे जब उन्होंने थ्रोन हैंडल करना स्टार्ट किया, दैट इज ओनली 14 इयर्स. इसी की वजह से वो किसकी गार्डियनशिप में वर्क कर रहे थे, बैरम खान. Akbar's is very much important. Akbar's court was adorned with the, we all know that कि अकबर के कोर्ट में 9 gems होते थे, right? So we are going to learn about that 9 gems only. The talent and brilliance of 9 gems or Navratnas, they were, first is Abdul Fazal. वो कौन थे तो ऑथर ऑफ अकबरनामा और एनी अकबरी. फैजल, he is a poet. मियान तानसेन, great musician. Birbal, great wit. Wit means what, student? The people who have ability to think quickly. Raja Todarmal, finance minister. राजा मान सिंह, जनरल एंड कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ मतलब कि आर्मी के जो हेड होते हैं वो. फकीर अजाउद्दीन, दैट इज द माइस्टिक एंड एडवाइजर. माइस्टिक किसे बोला जाता है, अ पर्सन हु सीक टू नो गॉड थ्रू प्रेयर्स, मतलब कि जो प्रेयर्स से गॉड को प्रेज करते हैं उन्हें माइस्टिक बोला जाता है. अब्दुल रहीम खाने खाना, द पोएट, सन ऑफ बैरम खान. अभी हमने पढ़ा कि जिनकी गार्डियनशिप में अकबर ने रूलिंग करना स्टार्ट किया था, बैरम खान, उनके सन. एंड वो कौन थे तो वो पोएट थे. मुला दो प्याजा एंड एडवाइजर. So they are the 9 gems of Akbar's
court, or you can say Navratnas. After becoming the emperor, he faced many difficulties. The battle between the Mughals and the Afghan force led by Hemu took place at the historic Second Battle of Panipat in 1556. हेमू कौन है स्टूडेंट? तो हेमू जो रीजनल किंगडम थे, हमने पढ़ा रीजनल किंगडम्स के बारे में, राइट? तो जो रीजन के जो पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो रीजनल किंगडम्स थे, किंग थे, वो अंदर फाइट कर रहे थे. तो जो लास्ट रीजनल किंग थे, ही वॉज दी हेमू, जो फाइट कर रहे थे अपने पोजीशन के लिए. तो हेमू के साथ उनका बैटल हुआ था. दैट इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 AD. हेमू वॉज डिफीटेड एंड killed in that. The Mughals reoccupied Delhi and Agra. Akbar's reign can be divided into 3 periods as far as the conquest and expansion of the empire are concerned. मतलब कि जितना भी अकबर ने रूल किया है, उनके जो बैटल्स थे, जितने उन्होंने बैटल्स किए हैं, उनको हम 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने कंक्वेस्ट भी किए, मतलब कि बैटल्स भी किए हैं, और अपने किंगडम को एक्सपांड करने की कोशिश भी की है. नाउ इनसाइट. अ मेजर स्टेप इन अकबर्स कैंपेन इन राजस्थान वाज द कैप्चर ऑफ चित्तौड़. द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ वाज द सिंबल ऑफ राजपूत प्राइड. Akbar managed to capture it after the struggle of 6 months. चित्तौड़ क्या था? तो वो फोर्ट था जो किसकी प्राइड था? राजपूत की प्राइड था. बट आफ्टर द बैटल ऑफ 6 मतलब 6 मंथ तक उन्होंने स्ट्रगल किया था, एंड देन ही कैप्चर दैट एरिया. बट द रूलर्स ऑफ चित्तौड़, राणा उदय सिंह एंड राणा प्रताप, रिफ्यूज टू सरेंडर टू द मुगल एम्पेरर. मतलब कि वो मुगल एम्पेरर के अंदर अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 3 phases that are very much important about the Akbar's rule. First phase of duration is 1556 to 1570 AD. Akbar gradually asserted his independence and freed himself from the domination of his guardian Bairam Khan. तो फर्स्ट फेज क्या है? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फेज में अकबर खुद को ही इंडिपेंडेंट कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो किसी की गार्डियनशिप में रूल कर रहे थे, दैट इज द बैरम खान. तो स्टार्टिंग स्टेज क्या था उनकी इंडिपेंडेंस का? तो फर्स्ट ही हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बैरम खान. During this period, Akbar took over Malwa, the parts of central India. He also captured the forts of Chittor and Ranthambore. Jodhpur has been conquered earlier. Now, second duration is 1570 to 1585 AD. During this phase, Akbar conquered Gujarat, Bengal, Bihar, and Odisha. The rich parts of Gujarat and Bengal brought immense profit to the Mughals. And the last stage is 1585 to 1605 AD. Akbar further expanded his empire in the northwest by capturing Kashmir, Kabul, and Kandahar. In the Deccan, he conquered Berar, Khandes, and Ahmednagar. So all these are the conquests and victories of Akbar that we learn in this particular 3 phases. Thus, at its peak, Akbar's empire stretched from Himalayas and Kashmir in the north to the river Godavari in the south, and from Kandahar in the west and Bengal in the east. You can see north, south, west, east. Akbar ने all over, मतलब you can say कि बहुत सारे एरियाज थे, बहुत सारे डायरेक्शंस में उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया था. Now, do you know, after Akbar tried to defeat Rana Pratap in the famous battle of Haldigati, but Rana managed to escape by riding his famous horse Chetak, who breathed its last only after taking the Rana away from the dangers of the battlefield. मतलब अकबर ने क्या किसे डिफीट किया था? ट्राई करना किया था राणा प्रताप को, पर राणा प्रताप क्या कर दिए थे? वो वहां से एस्केप हो गए थे अपने फेमस जो उनका हॉर्स था, दैट इज चेतक. और चेतक ने अपनी लास्ट सांसें कहाँ तक रखी थी? जब उन्होंने राणा प्रताप को सेफ जगह पे नहीं छोड़ दिया, तब तक उन्होंने अपने लास्ट ब्रीथ नहीं लिए थे. बट इवन आफ्टर लूजिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी,
राणा प्रताप डिड नॉट सरेंडर, मतलब कि कौन वहां पे डिफीट हुआ था? राणा प्रताप. देन ऑल्सो ही इज नॉट सरेंडर हिमसेल्फ अंडर दी मुगल्स एंड कंटिन्यू उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया था. Our main source of information about Akbar reigns are अकबरनामा and N.A. अकबरी. हमें अकबर के रूलिंग ड्यूरेशन के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो one book are there, that is अकबरनामा and N.A. अकबरी. Abul Fazl, one of the 9 jewels of or Navratnas of Akbar's court, wrote a 3-volume history of Akbar's reign. टाइटल्ड अकबरनामा. अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल. और वो कौन थे? तो 9 जेम्स में थे. बिगिनिंग इन 1589 AD, Abul Fazl remained in the Mughal court and worked on Akbar for 13 years, repeatedly revising the draft. Akbarnama is based on number of sources including government records, actual records of events, and verbal accounts of people. It gives us a clear picture of the administrative, social and cultural life of India during Akbar's reign. अकबरनामा जो बुक है जो अबुल फैजल ने लिखी हुई है, that book gives us all details about the Akbar's rule. All details means हाउ काइंड ऑफ डिटेल्स? एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर कैसे रूलिंग ड्यूरेशन, उनका रूलिंग ड्यूरेशन कैसा था, वो कैसे अपना सोसाइटी मेंटेन करते थे, कैसे अपना वो किंगडम मेंटेन करते थे और कैसे वो अपने कल्चर्स को फॉलो करते थे. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा डेल्ट विथ अकबर्स एंसेस्टर एंड द सेकेंड वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम्स हमने पढ़ा कि उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में डिस्क्राइब किया है अकबर के लाइफ को. तो फर्स्ट में उन्होंने किसके बारे में लिखा है? तो अकबर के जो एंसेस्टर थे उनके बारे में मेंशन किया है. सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन. इवेंट्स मीन्स बैटल्स ऑफ अकबर्स रेन. Third volume, N.A. Akbari give us detailed information about the Akbar's administration, land revenue and agrarian system. एग्रेरियन मीन्स कंबाइंड सिस्टम, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और यू कैन से कि ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अकबर्स रूलिंग ड्यूरेशन. नाउ नेक्स्ट इज जहांगीर, दैट इज 1605 to 1677 AD. अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांगीर. अकबर की डेथ के बाद किसने मुगल थ्रोन हैंडल किया? दैट इज द अकबर सन जहांगीर, popularly known as Salim. Jahangir followed Akbar's policy. He too adopted the policy of religious tolerance and developed marriage alliances with the Rajput chiefs and gave grants of high offices. मतलब कि वो भी कैसे पॉलिसीज फॉलो करते थे? तो अकबर के पॉलिसीज फॉलो करते थे. एंड इवन ही इज वेरी रिलीजियस. वो बहुत सारे रिलीजन को बिलीव रखते थे. वो किसी के साथ हार्श बिहेव नहीं करते थे. एंड इवन उन्होंने क्या डेवलप किया था? तो मैरिज अलायंसेस, मतलब कि उन्होंने वो अलाउड किया था मैरिजेस करना विद द राजपूत चिफ्स. Jahangir's reign saw the advent of European traders into India. Jahangir granted trading rights to the Portuguese and later to the English. जहांगीर ने किसे अलाउड किया था? ब्रिटिशर्स को अलाउड किया था. और यू कैन से कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको उनके पर्टिकुलर किंगडम में ट्रेडिंग के लिए अलाउड किया था. In 1608 AD, Captain William Hawkins, who represented the East India Company, came to Jahangir's court. Thomas Roy, an envoy of King of England, visited Jahangir's court in 1615 AD. Why they all were visited Jahangir's court? Because Jahangir allowed them to trade in that particular area. That's why they visited Jahangir's court again and again. A significant aspect of Jahangir's reign was the powerful role played by his wife नूर जहान. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी जहांगीर के रूलिंग ड्यूरेशन में? तो द रोल प्लेड बाय हिज वाइफ, एंड हिज वाइफ नेम इज नूर जहान. व्हाई इट इज हर रोल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन जहांगीर्स ड्यूरेशन? तो नूर जहान सेट न्यू फैशंस. नूर जहान जो थी उन्होंने एक नया फैशन अडॉप्ट किया था, दैट इज बेस्ड ऑन पर्शियन कल्चर. She added grace and charm to the Mughal court.
शी वॉज द मोस्ट बिलव्ड वाइफ ऑफ जहांगीर, मतलब कि जहांगीर की बहुत सारी वाइफ थी, पर जो नूरजहां थी वो उनको बहुत ज्यादा पसंद थी. वाई? ही इवन पुट हर नेम ऑन कॉइन्स. जहांगीर जो थे उन्होंने उनके किंगडम में जो कॉइन्स थे उन पे भी उनका नाम लिखवाया था. With his own, she was the constant companion. Why she was the beloved one of Jahangir? क्यों जहांगीर को वो सबसे ज्यादा पसंद थे? Because she was the constant companion of जहांगीर. मतलब कि वो जहांगीर को हर एक चीज में सपोर्ट करती थी, इवन वो हर एक डिसीजंस में भी उसे सजेशंस देते थे. She was a power behind the throne. Constant companion of Jahangir and even joined him in hunting. She was a power behind the throne. Her family members were given powerful position in the Mughal court. Inside, the Mughals maintained a grand court to show the power and dignity of the emperor. Once the emperor sat on the throne, no one was permitted to move from his position or to live without परमिशन. मतलब कि मुगल्स जो थे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे थे अपने कोर्ट में. जब रूलर जो होता था, किंग जो होता था, एक बार कोर्ट में आ जाता है, उसके बाद कोई भी उनके परमिशन के बिना कोर्ट में आ नहीं सकता है, कोई वहां से जा भी नहीं सकता है. In the court, proper rules had to be followed. While saluting the emperor, the highest form of salutation was सिजदा. मतलब कि कैसे आप किसी एम्पेरर को वी कैन से सैल्यूटिंग मीन्स व्हाट, कि उनको ऑनर कर सकते हो. जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको क्या था उस टाइम का, मतलब कि उस टाइम का जो रूल था वो क्या था कि जब भी आप कोर्ट में जाओगे और किंग होंगे तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा, राइट. तो उस टाइम में सबसे बेस्ट ऑनर कौन सा था? दैट इज द सिजदा. When one lay down, सिजदा क्या है? तो one lay down on the ground and completely prostrated before the emperor. Prostrated means what, student? That is the knee down. मतलब कि कोई क्या करता है, कैसे किंग को ऑनर करता है, तो नी डाउन होके फ्लोर जो होता है उसे टच करके प्रॉपरली उनको क्या करते हैं, उनके आगे झुक के उनको ऑनर करते हैं. Under Shah Jahan, this was replaced by the practice of Zamin Boz or kissing the ground. Now we are going to learn about Shah Jahan, that is ruling duration 1627 to 1658 AD. Shah Jahan continued with the administrative and religious policy of his grandfather and father. Grandfather and father means what? Grandfather is Akbar and father is Jahangir. In Deccan, he conquered Ahmednagar and Bijapur. The long period of peace and prosperity of Mughal Empire enabled Shah Jahan to produce excellent piece of architecture. अकबर और जहांगीर के वजह से क्या था, तो मुगल एम्पायर में बहुत ही पीस था. बैटल्स इतने नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था. तो उसके वजह से शाहजहां को ज्यादा अपना कंसंट्रेशन बैटल में और वॉर्स में नहीं डालना पड़ता था. तो ही मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, ऑन द एक्सीलेंस पीस ऑफ आर्किटेक्चर. मतलब कि वो बिल्डिंग्स बनाने में और आर्किटेक्चर में अपना जो टाइम था, वैल्यूएबल टाइम, वो स्पेंड करते थे. नाउ औरंगजेब 1658 to 1707 AD. Aurangzeb became the emperor after imprisoning his father Shah Jahan in the Agra fort and defeating his brother in a war of succession. औरंगजेब जो थे उन्होंने क्या किया था, तो फोर्सफुली थ्रोन हैंडल करना चाहता. उन्होंने जो उनके फादर थे दैट इज शाहजहां, उनको इम्प्रिजन कर दिया था आगरा के फोर्ट में, और उनके जो ब्रदर्स थे उनको भी सक्सेशन, मतलब वॉर में उनको डिफीट करके उन्होंने सक्सेशन किया था. अंडर हिज रेन ऑफ 50 years, द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ अप टू कर्नाटका इन साउथ. But at the same time, the empire faced many problems. उन्होंने expand तो किया था अपना kingdom, but eventually on the same way,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस उनको करने पड़े थे. औरंगजेब वॉज अ रिजिड एंड कंजर्वेटिव रूलर who adopted many anti-Hindu measures. The emperor reimposed jizya, which had been abolished by Akbar, and destroyed many Hindu temples. वो क्या थे? तो उन्होंने एंटी हिंदू मेजर्स अप्लाई किए थे. मतलब क्या? तो हिंदूज को वो परेशान करते थे. किस तरह से? तो जाजिया टैक्स जो था, जाजिया क्या है? इट्स वन काइंड ऑफ टैक्स जो नॉन मुस्लिम को पे करना पड़ता है. मतलब कि जो मुस्लिम्स नहीं है उनको पे करना पड़ता था ये. तो वो किसने निकाल दिया था? अकबर ने निकाल दिया था. मतलब अकबर, देन जहांगीर, शाहजहां, उन्होंने ये टैक्स निकाल दिया था, एबॉलिश कर दिया था. बट Aurangzeb again imposed it, and even he destroyed many Hindu temples. He angered the non-Muslim subjects who had enjoyed religious harmony and tolerance since the time of Akbar. Aurangzeb's reign was marked by many popular revolts. मतलब कि अकबर के ड्यूरेशन में, औरंगजेब के ड्यूरेशन में बहुत सारे रिवॉल्ट्स, वॉर हुए थे. All these revolts decreased the prestige and economic and political stability of the empire. When you continue battle with someone, so what happened? Your economic condition going to be down, then your politics going to be down, your prestige is going to be down. और अगर आप बार बार डिफीट होते रहोगे तो बट ऑफ कोर्स आपका जो प्रेस्टीज है, आपका जो पावर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. The execution of the Sikh Guru Tugh Bahadur angered the Sikhs and led to the revolt. Now the Sikhs under Guru Gobind Singh formed a military brotherhood called Khalsa and waged a continuous struggle against the Mughals. Now what is written down over here, students? जो सिख गुरु थे तग बहादुर, उनको भी क्या किया था? औरंगजेब ने इम्प्रिजन कर दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसके वजह से सिख्स में बहुत गुस्सा आ गया था. और उनके जो न्यू गुरु थे, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने अपना एक मिलिट्री ग्रुप बनाया था, जिस मिलिट्री ग्रुप को वो क्या बोलते थे? खालसा. और उन्होंने कंटिन्यू स्ट्रगल किया था, मतलब कि कंटिन्यू वॉर किए थे. किसके साथ? औरंगजेब के साथ. Revolts by Jat and Rajputs also disrupt the empire. और राजपूत और जट के बीच जो रिवॉल्ट्स थे, जिनके वजह से एम्पायर डिस्टर्ब हो रहा था. While the Jat revolt was peasant uprising, जट ने क्यों रिवॉल्ट किया था? तो पीजेंट मतलब कि स्मॉल वर्कर्स और फार्मर्स जो थे उनके साथ मिसबिहेव, उनको जो एक्सप्लॉइट किया था, उनके वजह से उन्होंने रिवॉल्ट किया था. The Rajputs revolted because Aurangzeb interfered in the court affairs of Mewar, a Rajput state. The greatest loss was that Aurangzeb lost the support of the loyal Rajputs. Aurangzeb also made serious political blunders when he underestimated the power of Maratha chief Shivaji and imprisoned him. After Shivaji's death, he tried to crush the Marathas, but the Marathas managed to harass the Mughal by adopting the guerrilla warfare. Now see student, what is written down over here? जट ने क्यों रिवॉल्ट किया था? बिकॉज ऑफ द पीजेंट्स अपराइजिंग. पीजेंट्स को वो जो टॉर्चर करते थे उनके वजह से. राजपूत्स ने क्यों रिवॉल्ट किया था? तो औरंगजेब फोर्सफुली राजपूत के कोर्ट्स में इंटरफियर करते थे. इंटरफियर कैसे करते थे? तो राजपूत्स के कोर्ट में अगर कोई डिसीजंस होते थे या कोई पॉलिसी फॉर्म होती थी, तो ही कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब देम. वो अपने सजेशंस देता था या फिर उनको इंटरफियर करता था कोर्ट में. दैट इज वाई दे रिवॉल्टेड, जिसके वजह से जो राजपूत के साथ उनका लॉन्ग रिलेशनशिप था अकबर के ड्यूरेशन से, वो लॉन्ग रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होने लगा. आफ्टरवर्ड दूसरी मिस्टेक उसने क्या की? तो उन्होंने मराठास को अंडर एस्टिमेट किया. मराठा चीफ जो थे शिवाजी, उनको अंडर एस्टिमेट किया. उन्होंने क्या किया? शिवाजी को इम्प्रिजन कर दिया, जिनके वजह से मराठास गुस्सा हो गए और उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया. Now, in the last years of his reign,
औरंगजेब वॉज इन डेक्कन ट्राइंग टू सप्रेस द मराठास। जब उसका लास्ट ड्यूरेशन चल रहे थे उनके रूलिंग ड्यूरेशन के, तो उस टाइम में भी वो क्या कर रहे थे, तो वो वॉर ही कर रहे थे किसके साथ, मराठास के साथ। कहाँ पे, डेक्कन। Finally, he breathed his last in Deccan in 1707 AD. He left behind a disturbed empire with many internal problems. मतलब कि उनकी डेथ कब हो गई, इन 1707 AD, और उनके डेथ के बाद भी उन्होंने एक पूरा कैसा एम्पायर छोड़ के वो गए थे, तो पूरा डिस्टर्ब्ड एम्पायर छोड़ के गए थे, क्योंकि टू मैनी पीपल्स वर रिवॉल्टेड विद द मुगल एम्पायर. Now, later Mughal. Though the Mughal Empire continued to rule till 1857, मतलब कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद भी मुगल एम्पायर जो था, मुगल रूलर्स जो थे, उन्होंने रूल किया था अप टिल व्हाट, 1857. बट द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर वीक, इनएफिशिएंट एंड करप्ट. जो सक्सेसर्स थे औरंगजेब के, वो कैसे थे, वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे, वो कैपेबल नहीं थे थ्रोन को हैंडल करने के लिए. द करप्ट एंड पावर हंग्री नोबल्स एडेड टू द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर. और जो नोबल्स थे वो क्या थे, तो वो पावर हंग्री थे, मतलब कि उनको पावर्स चाहिए थी. तो उनके वजह से, नोबल्स के वजह से भी जो मुगल एम्पायर का थ्रोन था वो धीरे धीरे वीक होने लगा. द वीकनेस ऑफ द एम्पायर इन्वाइटेड द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली. वेरी मच इम्पोर्टेंट. जब मुगल एम्पायर वीक हो रहा था तो उसका जो वीकनेस है, उसने किसको इन्विटेशन दिया, तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जो क्या थे, इन्वेंडर थे, मतलब कि वो फोर्सफुली एरियाज में अपने कैप्चर करके वहां से सारी चीजों को लूट लेते थे. यू कैन सी हियर हु इज लूटिंग एंड प्लंडरिंग अ ग्रेट वेल्थ, gave death blow to the already weakened मुगल एम्पायर. उन्होंने क्या किया, प्लंडर किया, मतलब कि फोर्सफुली एंटर करके सारी चीजों उन्होंने क्या की, लूट ली, जिसके वजह से मुगल एम्पायर और वीक होने लगा. Gradually, a number of states started breaking away. Thus, the Mughal Empire started disintegrating gradually after the death of Aurangzeb. Because of the Aurangzeb negative policies for ruling, the whole Mughal Empire demised. After his death, so many rulers ruled over Mughal Empire, but they all were weak, inefficient and corrupt, and because of that only Mughal Empire no longer able to stand and demise.